जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂਦੇ ਵੀ ਬਲੈਂਕ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੈਂਕ। ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਹ ਲੜ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਕਿਆ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిత ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦ, ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ, ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਨਮੋਹਰੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਣਾ। ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों के बाद मैं शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुपा का आदेश हुआ है कि शुक्राना करिए, रोज रात को शुक्राना करना है। और कुछ टाइम से मेरे को परेशान थी मैं कुछ गुरुपा, तो शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा माफी दीजिए। लेकिन गुरुपा जो जिंदगी में अस्त व्यस्त चल रहा है उससे मैं परेशान हो गई हूँ, बड़ी ज्यादा परेशान हो गई हूँ गुरुपा, क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा रहती हैं मुझे। तो शायद पिछले जन्मों के कर्म कुछ होंगे मेरे जो कट रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे पड़ोसी बहुत तंग करते हैं, जो कि गुरुपा मैं पहले भी शुक्राना सत्संग में बोल चुकी हूँ। बहुत परेशान करते हैं। तो आज का सत्संग इस टॉपिक पे ही है। गुरुपा जो नीचे वाला पड़ोसी है वो बहुत परेशान करता है, उसका पिता भी परेशान करता था। वो जमीनी विवादों में बहुत घसीटते थे हमें, हम उनसे डरे डरे रहते थे। तो गुरुपा उसने क्या किया कि उसने डंगे में पोल लगा दिए, डंगे में टच करके। तो गुरुपा मुझे बहुत, मैं उसको बोल भी नहीं पाई कि थोड़ा पीछे करो, क्योंकि उसने 4-5 बंदे ले आए हुए थे
और उसकी घरवाली भी थी जो उससे ज्यादा मतलब परेशान करती है गुरपा। तो गुरपा फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। अब मुझे थोड़ा मन में फील होता है कि मैं बोल पाती तो ठीक था। इस बात की मैंने टेंशन ले रखी हुई है, और जो उसके ऊपर वाले हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो अपना फायदा से उनको करते हैं, गुरपा उकसाते हैं। और ये पास वाली दूसरे वाली साइड की भी मैंने बताई थी कि उसने हमारे जो छत पड़ी थी तो उसमें उसने नहीं दी थी डालने, एक तरफ से छज्जा लेंटर का नहीं दिया था डालने, तो वो भी परेशान करती है गुरपा। तो गुरपा मैं कब तक इन लोगों से परेशान रहूं, आपकी बेटी कब तक इन लोगों से परेशान रहे प्रभु। या तो इनको सद्बुद्धि दे दीजिए या फिर हमें और सहन शक्ति दे दीजिए, क्योंकि गुरपा अब सहन शक्ति भी ऐसे बैठती जा रही है। उसकी वजह से मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है। सच में बता रही हूँ संगत जी, गुरपा जी, कोई काम नहीं होता है, मन चिड़चिड़ा रहता है। क्योंकि जब भी मैं लाइफ सेट करने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे गांव वाले टोटली परेशान करते हैं मुझे। तो गुरपा अब बहुत हो गया, इनके दिमाग सेट आप ही कर दो, क्योंकि ये हमसे दूर रहें। अब इन्होंने बहुत परेशान कर लिया आपकी बेटी को। आपकी बेटी इनका मुकाबला भी नहीं कर सकती गुरपा। ये पैसों की रोब जमाते हैं गुरपा और इकट्ठे होके परेशान करते हैं। तो गुरु प्यारे, आपको देखना है कि आपकी बेटी अब सहन नहीं कर सकती। गुरपा मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, मैं इन गांव वालों का टॉर्चर और सहन नहीं कर सकती। आपको पता है कि आपकी बेटी कैसी है, लेकिन गुरपा आपकी बेटी को इनसे हर वक्त दब के रहना पड़ता है। जमीनें भी छीन रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ाते हैं गुरपा, ये लोग तंग भी करते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमें बर्बाद करने के लिए गुरपा। अब आप ही देखो इन्हें गुरपा, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप चाहे कैसे इनको देखें, लेकिन आप अब हमें इन लोगों से बचाएं गुरपा। कब बचाओगे गुरपा? जब आपकी बेटी मर जाएगी तब बचाओगे आप मुझे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ इन गांव वालों से। सुबह इनका चेहरा, इनकी परेशानी, एक एक गांव वाला परेशान करता है तो अगला जमीनी विवाद पे परेशान करते हैं। और जिनका जमीनी विवाद नहीं है गुरपा, वो ऐसे परेशान करते हैं, बच्चों से जलते हैं कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसे टॉर्चर करते हैं। जिनका जमीनी टच नहीं है वो भी ऐसे करते हैं। तकरीबन तकरीबन गुरपा पूरा गांव मिला हुआ है। अब मैं क्या करूं, मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती जमीन जायदाद घर अपना। तो या तो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा अमीर बना दीजिए कि मैं अच्छे से रह सकूं और इनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि ये बस पैसे क्या ही रोब जमाते हैं सारे के सारे। क्योंकि पूरे गांव में शायद हम ही गरीब हैं और आपको पता है कि हमारे पास क्या है। तो गुरपा फिर भी आपकी बेटी हिम्मत रखती है, लेकिन मैं हिम्मत हार रही हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है गुरपा। क्योंकि ये हमें टॉर्चर करते हैं। जैसे इन्होंने डंगे में थोड़ा पिल लगाया, थोड़े पीछे भी लगा सकते थे। और गुरपा वो लेडीज, उस आदमी की लेडीज बहुत परेशान कर रही थी। वो ऐसे जवाब दे रही थी मेरे को कि मुंह से कैसे बोल रही थी, कुछ बोल रही थी गुरपा, कुछ जैसे कुछ परेशान करते हैं तो मैं अगर कोई बात बोल दूं उनको कि ऐसा नहीं करो ऐसा, तो बोल रही थी कि मुंह से चिपकती है ऐसा कुछ गुरपा। और गंदे शब्द बोल रही थी आपकी बेटी को गुरपा। आपको पता है मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा आज तक, लेकिन शत्रुओं, माता बगला मुखी को भेजिए आप इन शत्रुओं का विनाश करने के लिए, क्योंकि गुरपा बहुत जरूरी है।
माँ बगलामुखी का होना, क्योंकि इन शत्रुओं ने परेशान कर दिया है हमें। या तो ये हमसे शत्रुता खत्म करें, या तो इनका माइंड चेंज करो गुरुपा, लेकिन हमें परेशान ना करें। इनकी वजह से मेरी जिंदगी परेशान हो चुकी है। मेरे घर में रोज कला कलेश रहते हैं प्यारे गुरुपा। मैं आपके सिवा किसको बताऊं, अपने संगत परिवार के सिवा मैं किसको बताऊं, सब फायदा उठाते हैं गुरुपा। और गांव में भी सब मिले जुले हुए हैं गुरुपा। मैं कब तक छुप छुप के रहूं इन लोगों से। आपका भी मैसेज आया था कल परसों कि डर के नहीं रहना है, तो गुरुपा कैसे रहूं मैं? आप ही बताओ कैसे रहूं मैं? मुकाबला मैं नहीं कर सकती, पैसा मेरे पास नहीं है कोर्ट पंचायत में इनके खिलाफ लड़ूं। अगर मैं कहीं जाऊं भी पंचायत में, तो ये लोग 4 बंदे खरीद देंगे अपने झूठे। तो जमीन जमीन की निशानदेही लेने को ली थी हमने, तो इन्होंने 2-3 बार ली, और उनको कानू गो वगैरह को पैसे देके गुरुपा हमारी जमीन ले ली, और हमको मजबूर किया, और वहां पे पिल्लर पिल्लर लगा दिए, और हमारी जमीन छीन के हमको ही इतनू सी नाली के लिए देने के लिए। हमारा ही नीचे खेत था, हमारे खेत में पानी जाता था गुरुपा, उसमें भी हमारी ही जमीन हमको ही देके एहसान जता के हमारी और जमीन छीन ली इन्होंने। चलो वो भी छीनी, लेकिन अब जो बची है उसमें भी टच करके इन्होंने पिंडर लगा दिए। तो पता नहीं गुरुपा इनको किस चीज का घमंड है। मैं तो बोल रही हूँ गुरुपा, अगर इनको पैसे का घमंड है तो आप छीन लीजिए इनसे पैसा, क्योंकि ये बहुत निर्दयी लोग हैं और गुंडागर्दियों पे उतर आए हैं। प्रभु मैं क्या करूं प्रभु? अब इससे सिवा मैं क्या बोलूं गुरुपा? नाम भी नहीं ले सकती उनका, क्या नाम लूं मैं उनका? लेकिन ऐसे कृतज्ञों से लोग का क्यों नहीं समझते लोग? ऐसे मतलब क्यों करते हैं, किसी के नजायज फायदा उठा रहे हैं गुरुपा। थोड़ा बहुत 100 में से 80% भी उठाते तो भी गुरुपा 100 में से 110% हमारा फायदा उठा रहे हैं गुरुपा। ये कहाँ का इंसाफ हो गया गुरुपा? और ये टोटल गांव वाले मिले हुए हैं। मैं क्या करूं गुरुपा? हम परेशान हो चुके हैं, उसकी वजह से घर में लड़ाइयां पड़ती हैं रोज। मेरा माइंड काम करने को मन नहीं करता। और जो मेरी जेठानी है वो भी आके इकट्ठा घर है, उन्होंने बाहर डाले हुए हैं गुरुपा घर। 2-2 3-3 घर डाले हैं, करोड़ करोड़ रुपए के उनके घर हैं, चंडीगढ़ में भी हैं। लेकिन गुरुपा वो भी हमें परेशान करते हैं। हमने खुद बनाया इसको घर को, वो भी हक जमाते हैं। उन्होंने कच्चा मकान था ये गिरने वाला, तो हमने बनाया इसको। अब वो जेठानी ने 1 रुपया नहीं दिया, और मेरी सास ने उसको यहाँ से हिस्सा नहीं दिया, तो भी ये हक जमाती है आके। 2 महीने टॉर्चर किया आपकी बेटी को गुरुपा। मैंने उसको खाना भी खिलाया, और फिर वो मेरे को परेशान करती थी गांव वालों से मिलके गुरुपा। 2 महीने टॉर्चर किया उसने, बल्कि उसके इस घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो टॉर्चर करती है। और दूसरी वाले को है, लेकिन उसको एक ही कमरा है, लेकिन वो भी पूरे घर में करती है। तो गुरुपा मैंने अब जो दूसरा छोटा सा घर बनाया आपका, उसमें ये लोग इधर उधर से परेशान कर रहे हैं। जो मैंने आंगन में ही बनाया है छोटा सा घर, 1 कमरे का, और एक छोटा सा बाथरूम, और छोटा सा हॉल है, छोटा सा बरामदा है, छोटा सा किचन, छोटा छोटा सा। तो मैंने उसका घर का नाम भी रखा था कि गुरुपा का घर रखा था, नहीं रखा है, लेकिन नेम प्लेट नहीं लगाई है। फिर गुरुपा भी प्लस्तर किया है 2 कमरे में और बरामदे में, और बाकी तो ऐसे ही है गुरुपा। पैसे की भी तंगी है और लोग परेशान करते हैं। और जब मैं जब मैं जीने के लिए फिर अपनी टांगें खड़ी करती हूँ, तो मेरी टांगें फिर घसीट के मुझे नीचे गिरा देते हैं गुरुपा। जब जब मैं जीने की कोशिश करती हूँ तब तो परेशान करते हैं, और गुरुपा उसके बाद मैं जीने की कोशिश करती हूँ तो उसके बाद ब्लैक मैजिक कर देते हैं, घर में कुछ छोड़ देते हैं। पिछली बार मेरी जेठानी ने रख दिया था कुछ, तो आपके माध्यम से आपने बोला कि बेटा देख, तो वहां जंतर निकले थे। तो ऐसे मुझे कई जगहों का पता भी नहीं है अभी तक, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं गुरुपा? क्या क्या रख के जाते हैं, इकट्ठा घर है, मैं बोल भी नहीं सकती।
तो गुरुपा जो उन्होंने रखा है उसको भस्म कर दो आप। आपकी बेटी परेशान हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं गुरुपा। मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, मेरे से खुश रहने वाला बंदा आपको आपने नहीं बनाया होगा गुरुपा। संगत जी, तो मैं इसका इत्तेहाज अपने गुरुपा से कर रही हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग में ही करूंगी और कहाँ करूंगी। सत्संग के माध्यम से मैं गुरुपा से बात करूंगी, क्योंकि गुरुपा ने खुद बोला है कि बेटा जो बात है तेरे मन में उसको निकाल दे। लेकिन गुरुपा हर जगह ये लोग परेशान करते हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन को हमसे छीनते हैं, फिर और छीनते हैं, जैसे चारों पासे से पड़े हुए हैं ये लोग। सभी ऐसे हो गए हैं, हमको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या क्या लोग हैं गुरुपा, क्या लोग हैं ये जो चारों पासे से परेशान करते हैं। गुरुपा बहुत परेशान है आपकी बेटी। आप रक्षा करो इन लोगों से मेरी। और मेरे माइंड से ये बात नहीं निकल रही है गुरुपा कि उन्होंने वहां हमारी जमीन में पोल गाड़ दिए, क्योंकि पीछे थी हमारी जमीन, तो उन्होंने छीन छीन के उधर पहुंच गए गुरुपा। और जगह भी है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं आती गुरुपा कि दूसरे की जमीन नहीं छीनते, छीन छीन की रज नहीं रहे हैं गुरुपा। तो प्रभु इनको नरक की सैर कराओ, ठीक ढंग से कराओ। अब इनको वहां मिलेगी इनको जमीन है, क्योंकि इन्होंने ना खून के आंसू रुला दिए आपकी बेटी को। तो आप इंसाफ करो गुरुपा, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मैं आपसे बोलूंगी, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, तो मैं आपसे बोलूंगी। मैं किससे बोलूं? कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, आप ही हैं, तो आप ही सुनोगे गुरुपा। मैं आज आपसे बोल रही हूँ कि माँ बगलामुखी को भेजिए और समस्त शत्रुओं को पीछे हटाइए प्रभु, क्योंकि मैं शत्रु बाधा से बहुत परेशान हूँ प्रभु। तंत्र बाधा से परेशान हूँ। इन्होंने मुझे बीमारियां दे रखी हैं, क्या क्या करके रखा है इन्होंने। हे प्रभु रक्षा कीजिए इनसे। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर कुछ गलत बात निकल गई हो उसके लिए माफी गुरुपा। लेकिन गुरुपा आपकी बेटी को इंसाफ चाहिए, और चाहिए गुरुपा, मैं आपसे ही मांगती हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो भरोसा उठ जाएगा प्रभु। इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि मेरे में अब सहन शक्ति नहीं रही है। भगवान सुनिए जरा मेरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अगर आपकी बेटी ने कुछ बोल दिया हो उसके लिए माफी करें, लेकिन गुरुपा आपको भी पता है कि सहन करने की भी हद होती है। जय गुरुपा। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय प्राची आंटी जी। प्राची आंटी जी, मैं सुरिंदर सिंह बबली मेरी वाइफ का नाम है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो बोल रहे हैं जी। इस वक्त रात के 8:40 हो गए हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के आप जी नाल सत्संग शेयर करन लगा हाँ, जो कि साढ़े नाल 2 दिन होए हैं वापरिया है। और उम्मीद करता हाँ कि तुसी मेरा सत्संग सारी संगत नाल शेयर करोगे ते असीसां देणगे। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, परसों रात ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਲਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਬਬਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਚੁਸਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना, बड़ी आपकी मेहरबानी होएगी, मेरी बड़ी मेहरबानी होएगी। जय शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने अपने बर्थडे पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को। आपका बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से मैक्सिमम स्वरूप जो है वो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, मतलब मैंने मांगे नहीं थे, वो मुझे कहीं ना कहीं से मेरे पास आए हैं, मतलब गुरुजी ने खुद पहुँचाए हैं। और संगत जी, एक ना मेरे पास छोटा सा येलो चूल्हे में हम सबने गुरुजी का बड़ा प्यारा सा गद्दी पे बैठे हुए एक येलो चूल्हे में गुरुजी का स्वरूप है, छोटा पॉकेट स्वरूप मेरे पास, वही मतलब काफ़ी समय से वो था। और ना मैं सोचती थी कि मेरे पास एक ना लाल चूल्हे में गुरुजी का स्वरूप है, 2 स्वरूप है संगत जी, दोनों गुरुजी ने ब्लेस किए थे। जब हमने अपने नए घर में शिफ्ट किया था तो
ये सत्संग को मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि वो कैसे स्वरूप मेरे पास गुरुजी के आए थे। उसमें ना गुरुजी लाल झोले में हैं, संगत जी दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, मतलब उसमें गुरुजी से हम मतलब आँख ऐसा नहीं लगता है कि वो सामने देख रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास कोई ऐसा स्वरूप हो ना जो बड़ा हो और जिसमें गुरुजी सामने देख के स्माइल कर रहे हों, देख रहे हों मतलब। हालाँकि गुरुजी के वो लाल चोले वाले स्वरूप ही सबसे पहले मुझे पसंद आए थे और मुझे बहुत पसंद है और गुरुजी ने वही मुझे ब्लेस किए थे। बट ये मतलब उसके बाद जैसे होता है ना संगत जी, हम गुरुजी के स्वरूप लेने में भी लालच करते हैं। उन्हीं में से मैं एक हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने क्या किया इस बार संगत जी कि हमारे ना सोसाइटी में ही एक आंटी है, वो सिख हैं और उनके हस्बैंड शायद इतना ज़्यादा अभी उनका गुरुजी पे फेथ है नहीं या जो भी है, तो उनको मतलब आंटी को वो एक और आंटी है हमारे सोसाइटी में, उनको उन आंटी ने मतलब जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन 7 जुलाई को एक बहुत बड़ा येलो चोले में वही स्वरूप जो मैं बता रही हूँ ना संगत जी, मेरे घर में पॉकेट स्वरूप जितना है वही सेम स्वरूप बहुत बड़ा, मतलब गुरुजी का उन्होंने वो दिया पोस्टर रूप में आंटी को कि ये आप अपने घर ले जाओ। लेकिन अंकल शायद इतना भी एग्री नहीं करते और आंटी को ये था कि वो भी किसी छोटे स्वरूप से, ताकि वो बस गुरुजी को देख सके, निहार सके, उनकी पूजा कर सके, मतलब तो अपनी पॉकेट में रखने के लिए उनको एक छोटा स्वरूप चाहिए था। उनको ये डर था कि अंकल कहीं बेअदबी ना करें या पता नहीं मानेंगे घर पे रखने के लिए कि नहीं। आंटी ने कहा कि मैं जैसे ही वो स्वरूप मुझे वो दूसरी आंटी ने उनको दिया तो वो अपने घर नहीं गई बल्कि सीधा मेरे पास उनके कदम उड़ गए हमारे घर आने के लिए। ये 8 जुलाई की बात है संगत जी, शाम की 7 साढ़े 7 बजे की बात है और आंटी कहती कि मेरे विचार में आया कि मैं मतलब मेरे लिए बोला कि मैं तुम्हारे पास राशि के पास ये स्वरूप लेके जाती हूँ और बाद में देखेंगे क्या करना है। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी जो स्वरूप आप मेरे पास लाए मेरे पास सेम स्वरूप सेम झोले में पॉकेट रूप में है, तो जैसा आपको ठीक लगे। मैंने तो बस गुरुजी का दिल खोल के वेलकम किया कि गुरुजी आए हैं, बाकी जहान को जो स्थान लेना है वो खुद अपने आप वो स्थान वो जगह ले लेंगे, सब घर गुरुजी के हैं, ये भी और वो भी। ऐसे हम आंटी मैं और आंटी बात कर रहे थे संगत जी। तो ना कुछ समय बाद आंटी ने कहा कि ये जो तुम्हारे पास छोटा स्वरूप है ना, इसी को मुझे लेमिनेट करवा के ले आना मेरे लिए और ये तुम रख लो, बाकी देखते हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश, मतलब मुझे और क्या चाहिए। मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी आप यहीं रख दीजिए मंदिर में और मैं आपको लेमिनेट करवा के ना छोटा सा रूप दे दूंगी गुरु जी का, जबकि वो मतलब बहुत ही छोटा है और मुझे मैं रखती थी गुरु जी के स्वरूप के आगे वो भी। तो फिर मैं आंटी को नेक्स्ट डे लाके वो दे दिया और आज वो फ्रेम होके स्वरूप हमारे घर आया है संगत जी। और मैं बता नहीं सकती, वो इतना बड़ा स्वरूप है, मेरा मंदिर छोटा सा, तो वो लगता है कि जैसे ना गुरु जी बिल्कुल सामने साक्षात बैठे हैं। उसका इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग है उस स्वरूप का भी कि ऐसा लगता है कि गुरुजी बिल्कुल सामने बैठ के देख रहे हैं यार। आप दिल खोल के जितनी मर्जी गुरुजी से बातें कर लो, मतलब आप उनको स्किप करके, या जैसे होता है ना हम कई बार भगवान जी से नजर चुरा के निकल जाते हैं मंदिर के सामने, तो वो नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे ना संगत जी जब 8 जुलाई की बात है, मुझे गुरु जी के मैसेजेस भी शो हो रहे थे काफ़ी, आज भी हुआ इनफैक्ट कि मैं तेरे लिए गिफ्ट छोड़ के आया था, तेरे घर के कोने में ही है, तूने चेक किया। अब ऐसा तो मुझे नहीं पता संगत जी पे मेरे लिए तो इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा आशीर्वाद गुरु जी की, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। आपकी महिमा तो आप ही जानते हैं सच्चे पातशाह। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत पाप करती हूँ, मैं बहुत मतलब बहुत गलतियाँ करते हैं गुरु जी हम, फिर भी आप हमें कितना अपना लेते हैं बस। आप कितने प्यारे हैं गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे माता पिता पर यूं ही बनाए रखना, हमारी कभी वहाँ मत छोड़ना गुरु जी। इस घर में एक और स्वरूप के रूप में आने के लिए बहुत शुक्राना। आपका ये घर है गुरु जी, आपके ही हम बच्चे हैं, बस आप कैसे अपनी मर्जी से, मतलब आप सर्वशक्तिमान हैं गुरु जी, आप सब कुछ है, आप भगवान हैं। आज सावन का पहला सोमवार भी है संगत जी। सच्चे पातशाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरे प्यारे गुरु जी का कि आज उन्होंने आज का दिन चुना था हमारे घर में प्रॉपर एक, जैसे आ तो वो 8 जुलाई को ही गया था हमारे घर में स्वरूप, लेकिन मैंने लेमिनेशन के लिए दिया था उसको, फ्रेम करवाने के लिए फ्रेम करवाने के लिए दिया था संगत जी। तो पिछले कल वैसे मुझे बुलाया था शॉपकीपर ने कि मैं परसों दे के आई थी ना, तो कहा था कि कल आप ले जाना। तो संगत जी बस कल पता नहीं, मैं मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैंने 24 घंटे ज़्यादा आपको वहीं शॉप पे
रहने दिया, मुझे प्लीज़ बख्श लेना सच्चे पातशाह। और आप 8 तारीख के हमारे घर आए हुए हैं इस रूप में, इस चूल्हे में, और मैंने जाके मुझे 12 तारीख को मैं जाके आपको इस स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए लेके गई हूँ। मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे बख्श लेना। नाराज़ मत होना गुरुजी, और बहुत प्यारे हैं आप। इतना प्यार करने के लिए, अपना बच्चा बना के इतने प्यार से रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, फिर से एक और शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और जो ये अंकल आंटी जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका गुरु जी कल्याण करें। बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने आज सावन का पहला सोमवार था गुरुपा। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने गई गुरुपा। आपने मुझे सुबह समय से उठवाया गुरुपा, जल चढ़ाने गई गुरुपा। मन ठीक था गुरुपा, अच्छा लगा गुरुपा। तो गुरुपा भोले बाबा इतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाई गुरुपा, भीड़ बहुत होती है और एक मेरे अंकल हस्बैंड भी बहुत परेशान करते हैं, ये करो वो करो। गुरुपा बोलना चालू कर देते हैं तो बहुत चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन गुरुपा जल तो ठीक से चढ़ाया गुरुपा, बेलपत्र सब कुछ चढ़ाया गुरुपा। तो गुरुपा जल चढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। सुबह सुबह गई गुरुपा जल चढ़ाने के लिए, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर आके अंकल हस्बैंड के नाम बेटे का लंच बना के गई थी गुरुपा। आके फिर अंकल पूजा पाठ किया, फिर अंकल हस्बैंड का नाश्ता बनाया, फिर अभी शिव चालीसा पार्वती चालीसा किया। अब आपके सामने मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। और बहुत अच्छा दिन बीते गुरुपा। गुरुपा, आप बता रहे हो कि तेरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है गुरुपा। अब क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर आप कह रहे थे बीमारी कटेगी कटेगी, कटा ही नहीं गुरुपा लग रहा। तो अब शरीर, अब कुछ कह भी नहीं सकती गुरुपा। अब आप देखो गुरुपा, मेरे शरीर से सारी बीमारियां ख़त्म करो गुरुपा। दर्द बहुत रहता है शरीर में गुरुपा, पूरे चला भी नहीं जा रहा गुरुपा अब तो ठीक से। तो गुरुपा अब आप मेहर करो गुरुपा, बीमारियों को काटो गुरुपा। सत्संग सुनने जा रही हूँ गुरुपा, अब सत्संग ही सुनूंगी गुरुपा। और गुरुपा आप गुरुपा महसूस तो बहुत पॉजिटिव आते हैं। चिंता मत कर, तेरी तकदीर बदलने वाली है, तेरे मन सत्संग सुन गुरुपा। और गुरुपा एक चीज़ और है गुरुपा, ये मेरे घर में ना आत्मा का वास का बहुत सत्संग आ रहा है गुरुपा। अब आप देखो गुरुपा, तेरे घर में आत्मा का वास है, सत्संग सुन वरना तितर बितर हो जाएगा। ये बहुत आते हैं गुरुपा, जरूर कुछ होगा तभी आते हैं गुरुपा। और तेरी आंटी तेरी लापरवाही से तेरे बेटे को खतरे का और जान लेने रही। 6-6 5 मिनट निकाल के सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना आगाह करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार का भला चाहती है तो सत्संग सुन गुरुपा। मैं तो सारे सत्संग ध्यान से सुनती हूँ गुरुपा। अब गुरुपा जो भी है आत्मा का वास है सब आप ही निकालो गुरुपा, काटो आप ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत समझ नहीं आ रहा गुरुपा, और जो आत्मा का बास वाला है गुरुपा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं गुरुपा। अब आप ही रास्ता दिखाओ गुरुपा, आप ही रास्ता दिखाओ गुरुपा। और बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो गुरुपा, आप संभालना गुरुपा, आप ही सब निकलवाओ गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा। और मेरे शरीर से बीमारियों को भी दूर करो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जल प्रसाद भी नियत नियम से लेती हूँ, चंदन टीका भी नियत नियम से करती हूँ गुरुपा। आँखों में भी मैं, आपने बोला था मैं बड़े मंदिर का जल प्रसाद डाल ले एक बूंद, मैं भी वो भी नियम से डालती हूँ गुरुपा। गुरुपा आप ही सब देखना अपनी बेटी के घर का, आप ही देखना बेटी गुरुपा। मेरे बच्चों को भी आप संभालना गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड को भी गुरुपा, हमें भी संभाल लेना गुरुपा। बीमारियाँ कष्ट खत्म कर देना गुरुपा। नहीं मुझे मेरे बच्चों को ये बहुत दिक्कत होगी गुरुपा। मेरा छोटा बेटा मेरे बगैर नहीं रहता गुरुपा। अभी वो छोटा है गुरुपा, बड़ा तो बड़ा हो गया। तो गुरुपा मैंने, अब आप मेरे बीमारियों को काट दो गुरुपा, मुझे महसूस हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय ओम गुरु जी, नमः शुक्राना शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। जय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी, मैं का बहुत मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी मेहर का शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप इतने अच्छे हैं, कितने गुरु जी इतने प्यारे हैं। आप अपने बच्चों से, कितनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। आप कहते हैं मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। गुरु जी, संगत भी आपको बहुत प्यार करती है, यही सच है गुरु जी। गुरु जी, सचमुच गुरु जी, संगत बहुत, जो भी आपसे जुड़ जाता है एक बार, वो आपको छोड़ तो सकता ही नहीं है। आप इतना अपनी संगत को प्यार देते हैं, अपने बच्चों पर हाथ रखते हैं। जय गुरु जी, सत्संग गुरु जी, नाना गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे प्लीज गुरु जी अपने सारे बच्चों को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए गुरु जी। आपने कहा पुत्र बस तू शुक्राना कर, तेरे बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उस उसका शुक्राना गुरु की मेहर का शुक्राना गुरु जी, अपने प्यार का शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा और हम हमेशा, आपने गुरु जी मेरी, आपने कहा था मैंने पुत्र तेरी हेल्थ ब्लेस की है, तेरी सारी बीमारियां ख़त्म करनी है। गुरु जी, सचमुच मेरी काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, कि अभी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको प्लीज़ गुरु जी ख़त्म कर दीजिए। मैं डॉक्टर के नहीं जाना चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। खुद गुरु जी, आपकी संगत में काफ़ी बेटियां ऐसी हैं गुरु जी जिनका मैंने सत्संग सुना है, जिनको आपकी मेहर की और आपके ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी उन बेटियों पर ज़रूर कृपा कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ब्लैक मैजिक, काला जादू जो कहती भी है, मैं नहीं जानती क्या होता है, लेकिन प्लीज़ उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप उन पर अपना कृपा ज़रूर कीजिएगा गुरु जी। और आपने कहा मैंने तेरी पति की हेल्थ ब्लेस कर दी है, तेरा काम बना दिया है। गुरु जी, जो भी आपने किया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे पूरे घर पर, मेरे सारे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखिएगा, उसी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत सी बातें कहने को कहते कहते कभी कभी भूल भी जाती हूँ। सॉरी गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। बस अपने प्यार देने का बच्चों और राज
और सभी को अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए गुरुजी। राज बेटे को भी अपना प्यार और ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करता है। आप हम सब लोगों के सत्संग आप तक पहुंचाता है। उसको मैं भी अपनी तरफ से बेटे के रूप में या भाई के रूप में जो भी है, मैं उसको अपनी तरफ से बहुत प्यार और ब्लेसिंग देती हूँ। जी सर, बहुत छोटा सा सत्संग कर आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय सॉरी गुरुजी, गुरुजी, माफ अनंतम कर दीजिएगा। अनंतम आगे का शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शरणम गुरुजी नमः शुक्राना गुरुजी लख पार शुक्राना गुरुजी करुणा वास शुक्राना गुरुजी दित्तारो शुक्राना गुरुजी दित्तारो शुक्राना जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, बस टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं क्या करूँ। बहुत परेशान कर रखा है, मदर इन लॉ ने बहुत परेशान कर रखा है, गुरु पापा मैंने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, इसलिए शुक्राना नहीं कर पाते गुरु पापा। मुझे बुखार चढ़ रहा है, इस वजह से परेशान हो रही हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। गुरु पापा कहते हैं शुक्राना रोज करा करो, शुक्राना सबसे अच्छा है, शुक्राना करना वही सेवा है। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जिस टाइम मिले मैं उस टाइम शुक्राना कर देती हूँ मेरे गुरु पापा। वो तो हमें सब पता है कि आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ आप कण कण में विराजमान हो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुनो जी, मेरे पापा कहते हैं कि तुम मुझे नहीं देख पाते, मैं तुम्हें सब देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर की शरीर की बीमारियों का मुझे सब पता है, मुझे तो किसी का क्या बीमारी है। गुरु पापा कहते हैं कि आप ये इलाज करो, वो ये करो, वो करो, सब उपाय बताते रहते हैं। कोई कर पाती हूँ, कोई नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं लग पाता, क्या करूँ गुरु पापा आप बताओ। संगत जी, गुरु पापा का तो फर्ज है सब कुछ बताने का, गुरु पापा हर चीज़ बताते हैं, मेरे मैसेज देते हैं, पर क्या करें, हम पागल मूर्ख नादान बच्चे हैं इनके, जो हम कर नहीं पाते। हम मूर्ख बच्चे हैं इनकी, जो हम समझ नहीं पाते। कुछ पापा मैसेज देते हैं, कुछ मैसेज हम समझ ही नहीं पाते, फिर कहते हैं तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम करते नहीं हो। सब उपाय बताते हैं, छोटे छोटे वैसे सत्संग इसके द्वारा सब कुछ बताते हैं, तो क्या करूँ गुरु पापा। बस इतनी बिजी हो गई हूँ कि क्या करूँ, मैं मैसेज भी नहीं पढ़ पाती, बाई टाइम मैं मैसेज भी नहीं पढ़ पाती गुरु पापा। देव देवों के देव महादेव सृष्टि के रचयिता हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या करूँ गुरु पापा। आप सब कुछ जानते हो मेरे गुरु पापा, सब कुछ। सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखना, सब बच्चे दे सिर ते मेहर भरा हाथ रखना, सब ते भरा बिरा होते पापी दे सिर ते मेहर भरा हाथ रखना, दियाँ जवाइयों दे सिर ते मेहर भरा हाथ रखना, सब तीनों पुत्र दे सिर ते मेहर भरा हाथ रखना, मेरी पोती दे सिर ते मेहर भरा हाथ रखना। आपकी बच्ची नादान है, अपनी बच्ची को देखो गुरु पापा, आपकी बच्ची कुछ नहीं जानती, पागल है आपकी बच्ची, तो मूर्ख है। मैं तो आपको गोद में बैठना चाहती हूँ, बस मुझे नहीं पता कुछ भी। आप देखो जो कष्ट आएगा, आप देखो, कष्ट आने से पहले बता देते हो कष्ट आएगा, आप तो सब कुछ छोटे में टाल देते हो गुरु पापा। आप देखो, मैं तो आपके शरण में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरु पापा। आप मेरी किस्मत पलट दो गुरु पापा, किस्मत पलट दो, है सृष्टि की रचयिता, मेरी किस्मत पलट दो बस गुरु पापा। मैं तो आपके साथ रह के खुश हूँ गुरु पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपके साथ रह के बहुत खुश हूँ। सब कुछ दे रहे हो मुझे, आप सब कुछ कर रहे हो। जय गुरु पापा, देवों के देव महादेव, सब कुछ। मैं तो झूठा अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ गुरु पापा, आप सब कुछ मुझे दे रहे हो, बस आप, मैं तो आपके साथ रह के खुश हुए। मैं देवों के देव महादेव, आप तो मेरे पापा हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, अपनी बच्ची को बता रहे हैं गुरु पापा। आप देखो, बस मुझे कुछ नहीं पता किसी बात का। है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु पापा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी।